So hi hello everyone, in this particular video we are going to talk to Hardik. He's from our own DataX community, data engineering bootcamp. He was into that and he has got about 200, more than 200% of hike, and right now he is working as a remote senior data engineer. So we'll be talking about all the questions, whatever you have, the particular things, whatever a person goes through whenever he is or she is planning for a switch, all those type of questions, how he prepared, about the failures, about the success, all those kind of things, about the salary, about the work, about the interviews, all those kind of things we have covered. So let's start the video. So hi hello everyone, in this particular video today we have a very special guest. He's from our own community, DataX community, and we'll be like, it is a very good news also we'll be sharing. And let's start with the video. First is, let's start with the data engineering journey that he has just recently started with a very good company, that we'll be talking, and then with his all experience we'll be discussing. So firstly, let's go with the introduction. Hardik, can you please introduce yourself? Yep, sure. Firstly, Anurag, thank you so much for inviting me over here. So it's like great opportunity for me to be here. So talking about me, so I'm Hardik Shah. I'm from Ahmedabad, Gujarat. So according to my for academics background, if I say I have done my computer engineering from a very well-known college over here in Ahmedabad, that is LDE College of Engineering. So I'm 2021 pass out basically at the time of COVID and all. So I did at the time of COVID, during the placements and all, I got on-campus placement in TCS, and I have been over there for almost 4.5 years. So I joined as a fresher over there, and then I switched. And currently, I'm working remotely as a senior data engineer at Cointech, that is a US-based company. So yeah, I'm working over there, and that's like my short interview, short intro about me. Oh, great. As you mentioned, just to pinpoint, that is about TCS. Very interesting. So basically, can you just, because if you passed out in 2021 and you joined at that time, how was the things about at that particular time? Like, did you know about what data engineering is, or even data domain, what is exactly it is? Can you please elaborate that particular part? As you are coming from a TCS background. Yeah, so honestly speaking, I was not कुछ पता नहीं था at the time. सिर्फ सिंपल माइंडसेट था, बहुत सिंपल माइंडसेट, एमएनसी में जॉब मिल जाए और लाइफ सेटल हो जाए था पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोविड एक्चुअली था एंड अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत डिफरेंट था उस दिन. सो डेटा इंजीनियरिंग साइड कुछ इतना पता नहीं था, बट हाँ, आई यूज्ड टू नो एआई एमएल एंड एवरीथिंग. बेसिकली पता था, क्योंकि ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में दैट वाज टाइम एआई एमएल बहुत ज्यादा चल रहा था. बट बेस्ड ऑन द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है वो भी नहीं पता था. But eventually सब pass हो गए, I get into TCS and everything. फिर first project जो मिला, and then I got to know. Eventually that's also an interesting story. I got allocated to basically a testing project. Oh, and after that usually happens. Yeah, service-based company थी, तो it happens like that. So service उसमें testing में project में assign हुआ था, and then trainings and वो वगैरह सब start हुआ था. तब कुछ पता नहीं चला. 1 month I was I told my team leader also, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ करो मेरे लिए कुछ. And luckily he was very good, he was very supportive. तो फिर मेरा same project में technical role side मेरा switch हुआ, and I got into a SAS developer. Okay. So SAS is basically analyst side, engineering side also we can say, statistical analytical system. तो तब से वो data की journey start हुई, and data कैसा है, basically वो सब start हुआ. So तब से डेटा इंजीनियरिंग पे आया, बट इवेंचुअली कुछ पता नहीं था. फ्लो में सब होता है. You started exploring, you got to know, ऐसे करके चीजें बेटर होती रही. That is very good. तो एक और चीज बेसिकली दैट इज, जैसे इन द टीसीएस जर्नी के बारे में बहुत फोकस्ड बात करते हैं. दैट इज बेसिकली 4.5 years आपने वहां पे काम किया. व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू डिड, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू वर्क फॉर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ बेसिकली, सो दैट पीपल आर ऑल्सो हैविंग सम आइडिया. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीसीएस से ही होंगे, जिनको थोड़ा सा अच्छा माइंड सेट बेसिकली सर्विस बेस्ड से होंगे, तो उनको भी एक क्लैरिटी मिलेगी इस चीज की. Basically, yeah. So basically, I worked for 4.5 years over there. So client over the 4.5 years, same client पे I worked. But the thing was I worked for 3-4 different projects in that. और वहाँ पे सब long term projects रहते हैं, 1 साल के, 1.5 साल के, वैसा सब. So I worked for 3 to 4 different projects, and also different regions पे मैंने काम किया है. I started from US, then UK, and lastly I was working for Australia with the same client थे, but regions सब different थे. So initially it was, everything was good, the projects and everything. But time वैसा था, basically growth भी मिला और even comfortable भी हो गया था kind of, if we देखने जाए तो.
बिकॉज लाइक करेक्ट। डीप डाइव देखने जाए तो लाइक पूरा डीप एक्सपोजर भी मिला था, बिकॉज आई वर्क फॉर दिस मच ऑफ टाइम। तो सब लाइक एंड टू एंड सब पता था, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज भी और वी कैन से लाइक द बिजनेस साइड भी। सो इट वाज गुड इनफ ओके। फॉर लाइक बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन साइड भी और टीम हैंडलिंग साइड में काफी ज्यादा एक्सपोजर मिल गया था। बट इफ ओह वी ग्रेट। दूसरे टाइम देखने जाओ ऑन द अदर साइड, इट वाज लाइक बेसिकली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, बिकॉज ओवरऑल लाइक इतना सब रहता है, लाइक सेम क्लाइंट रहते हैं, सेम टीम रहती है, सेम सेट ऑफ करेक्ट। पीपल्स रहते हैं, एक लाइक वो यूज टू फ्रेंडली बॉन्डिंग हो जाती है। एंड तब लाइक आई वुड फील लाइक लाइक वो लर्निंग फेज जो रहता है ना, वो एक स्लो पॉइंट पे डाउन हो आके जाता है। स्टॉप हो गया था, लाइक हाँ हम्म। स्लो डाउन हो गया था। तब आई थॉट कि नहीं, लेट्स फाइंड समथिंग लाइक जहाँ पे लाइक लर्निंग भी हो एंड एवरीथिंग, एंड देन वी केम हम्म। आउटसाइड। बट या ग्रोथ भी हुआ एंड इट वाज लाइक कंफर्टेबल जर्नी एज वेल। हाँ, बेसिकली ये होता है क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव बीन इन अ कंपनी लाइक यू आर इन अ डेवलपमेंट दिस थिंग, बट आई हैव सीन पीपल हु आर इन प्रोडक्शन सपोर्ट फॉर 7 years, 8 years, 10 years like that, and then when they at that point want to switch, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है बट दे कैन डू करेक्ट। इट, बट दैट कंफर्ट जो आ जाता है एग्जैक्टली। ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि बाहर व्हेन यू गो इन द मार्केट एट दैट पॉइंट द थिंग्स दैट आर आस्क्ड दैट इज वेरी डिफरेंट, एंड व्हाट यू आर हैविंग द स्किल सेट, द गैप इज देयर, करेक्ट। बहुत इंडस्ट्री में गैप आ जाता है। गैप। तो वो उसमें टाइम लगता है उन सारी चीज़ों में, बट डेफिनेटली उसके बाद एक और चीज़, व्हेन यू स्टार्टेड लाइक व्हेन यू डिसाइडेड कि बेसिकली आई विल लीव दिस एंड नाउ आई विल गो टू अनदर कंपनी, सो एट दैट पॉइंट वो कैसा फेज था? पहली चीज़ तो लाइक हाउ वाज दैट फेज, एंड उसमें रिजेक्शंस भी आए होंगे, बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, व्हाट हैपेंड इन दैट जर्नी। या सो बेसिकली रिजेक्शन तो लाइक काफी लाइक रिजेक्शन हर्ट भी ज्यादा किए थे, बिकॉज लाइक पहले तो 90 days नोटिस पीरियड, लाइक द काफी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी पेन। उसकी वजह से लाइक फिल्टर आउट हो जाते हैं। लाइक वो हम्म। प्रैक्टिकल चैलेंज है, लाइक वो लाइक बेसिकली वो ओवरकम करे। और हम्म। बाकी फिर आता है लाइक इवन अप्लाई कर रहे हैं तो कॉल्स नहीं आ रहे हैं। हम्म। कॉल्स होने के बाद इवन फेस लाइक विद बिग एमएनसी कंपनीज दैट में सब इंटरव्यू राउंड सब खत्म हो जाते हैं इन द एचआर राउंड। फिर वो बोल रहे हैं लाइक दिस टू डेवलप ड्यू टू सम डेवलपमेंट चेंज और एनीथिंग, ये रोल लाइक क्लोज कर दिया एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट हायरिंग। सो इवन लाइक एट दैट पॉइंट लाइक जो लास्ट स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, देन इट्स लाइक वेनिस इज एवरीथिंग, लाइक सब कुछ चला जाता है। करेक्ट। सो वो सब दिक्कत रहती है। लाइक ऑल्सो लाइक आई फेस लाइक स्टार्टिंग में लाइक वो प्रॉपर लाइक वो बोलते हैं ना इंटरव्यू स्पेसिफिक कुछ इतना पता नहीं था, इवन तो लाइक वर्क आई वाज वर्किंग, बट मार्केट में जो पूछ रहा है इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। इट वाज डिफरेंट। नॉट दैट। हाँ, जो मैं कर रहा था उससे बहुत काफी डिफरेंट, इवन तो डेटा इंजीनियरिंग में और डेटा एनालिस्ट फील्ड में ही मैं था, बट इट वाज वे डिफरेंट जो मार्केट में सब पूछ रहे थे इंटरव्यूज में। सो वो सब एग्जैक्टली। डिफिकल्टी आई, लाइक वो नहीं आ रहा, तो वो गैप फिर दिख रहा है इंटरव्यू टाइम पे, लाइक यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट थिंग, लाइक वो सब इश्यू रहते थे और तब रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। बट इट वाज लाइक चैलेंजिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है, करना क्या है। सो बहुत दिक्कत तब हो रही थी, लाइक स्टार्टिंग में इंटरव्यू स्टार्ट किए थे तब इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एंड लाइक कॉन्फिडेंस भी शायद एकदम वो हो जाता है। लाइक बेसिकली व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग, वैसे तो मैंने अबाउट 2.5 3 years के एक्सपीरियंस से स्विच किया था, तो एट दैट टाइम आल्सो द मार्केट डिमांड वाज वेरी डिफरेंट। वो दैट दीज थिंग्स हैपेंस ओनली कि, और उस समय ऐसा लगता है ना कि हाँ मेरे अंदर ही कमी है यार, आई एम नॉट हैविंग दैट स्किल, आई डिड दिस मिस्टेक, आई दिस मिस्टेक, ये स्किल सेट क्यों नहीं सीख लिया, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीख ली, ये प्रॉब्लम होता करेक्ट। है। वो तो सेल्फ इस डाउट थोड़ा रहता है, बहुत हाँ। ज़्यादा होता है, एंड लिटरली एक चीज़ आप बताओ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कि आपको उस पॉइंट पे, क्योंकि वो एक ना, जब आप मल्टीपल इंटरव्यूज व्हेन यू आर गिविंग ना, यू गेट दैट पर्टिकुलर फेज, एक फेज आता है जब आपको पता चलता है मेरे अंदर ये कमी है। तो उस समय आपको क्या लगा था बेसिकली, कि वेदर यू आर लैकिंग सम डायरेक्शन, हाउ द थिंग्स वर बेसिकली, क्या आपको फील या सो हुआ? बेसिकली इंटरव्यूज तो काफी दिए थे, इवन लाइक आई हैड वन थिंग लाइक बेसिकली लाइक मैं जो भी इंटरव्यूज देता था जहाँ पे भी लाइक वो गैप डिफरेंट पता चल रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, तो मैं एक्सेल एक शीट मेंटेन करता था, ओह उसमें मैं सब ग्रेट। नोट डाउन करके रखता था कि लाइक पता चले फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू व्हाट आई एम मिसिंग, तो वेर इज द गैप बेसिकली। और वो भी था लाइक बेसिकली स्टार्टिंग में पता नहीं था लाइक स्ट्रक्चर्ड पाथ क्या फॉलो करना है बेसिकली, लाइक कुछ भी रैंडमली लाइक यूट्यूब से देख लिया, या इफ आई गो विद द लिंक्डइन लाइक एनीवन इज पोस्टिंग तो वो पढ़ लिया। तो लाइक वो सीक्वेंस या ऑर्डर पता नहीं चलता था, कुछ भी पढ़ रहे थे लाइक, फिर रियल लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे थे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था लाइक पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक क्योंकि स्ट्रक्चर्ड पाथ होना बहुत लाइक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है है। इफ यू आर बेसिकली गोइंग विथ एनी इंटरव्यूज एनीथिंग। सो वो लर्निंग फेज इजी हो जाता है इफ यू आर नॉट गोइंग विद दैट लाइक
like randomly we are learning anything or that thing. So that's very difficult at that point of time. So that's the major Correct. gap I would say in this. ओके हाँ स्ट्रक्चर बहुत Yeah. ज़्यादा ज़रूरी होता है इफ़ लाइक यू आर नॉट हैविंग अ डायरेक्शन बेसिकली दीज आर द टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव टू डू एंड देन यू कैन गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू फॉर दिस रोल और आप रैंडमली XYZ पढ़ रहे हो वहाँ पे ABC रिक्वायर्ड है तो दैट इज़ अ गैप दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक correct. बट if you can learn about those things you will be able to crack that job but उसके लिए dedication and Correct. structure बहुत ज़रूरी है तो Structure बहुत उस पोजीशन में what changed what was the turning point कहाँ पे आपको ऐसा हुआ कि हाँ अब ये चीज मेरे को पढ़नी है और वहां से चीजें पिकअप होना चालू हुई Correct. So turning point I would say when I stopped consuming the random content, like कुछ भी flow के बिना like वो बंद कर दिया ना, because I was without any intent. I was like कुछ भी randomly I was studying and everything. So at that point there is like very good YouTuber over data engineering fields and everything. So I used to take his like boot camp. I took his boot camp. His name is Anurag Srivastava. So basically I took, so you already know, like I've been into your like batches like boot camp and everything. So basically for the viewers, like because he has called me, I'm not promoting this, but I've actually been in the part of his journey, like from his boot camp, starting from it. And it's very like in that boot camp, I've seen like क्या कितना और कौन से order में पढ़ना है, like you have like defined it really well. Like so basically that gave me a confidence. Basically I've gone through like basically Python, SQL, PySpark and everything. Even though I was knowing, but तो इंटरव्यू स्पेसिफिक जो रहता है ना, लाइक यू नीड दैट गैप. लाइक इवन तो आपको आता है, लाइक पाइथन भी आता है, सीक्वल भी आता है, बट इन दैट बूट कैम्प दैट यू हैव क्रिएटेड, इट्स लाइक रियली वेरी सीक्वेंस फ्लो में सब चल रहा है. यू गेट टू नो अबाउट स्पार्क एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो पैरेलली वो बूट कैम्प के साथ साथ आई वॉज डूइंग लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस, और पैरेलली मैं डेली सीक्वल क्वेश्चंस या पाइथन क्वेश्चंस एवरीथिंग सॉल्व करता था. एंड ड्यू टू दैट इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग. So that was the major like turning point I would say. Like structured भी follow कर रहे हो, hands on भी हो रहा है, और interview space, because interview is like basically scenario based questions और वो सब ज्यादा रहता है ना, because I was preparing for the senior role. So वो major turning points थे, like basically if I go with the points and everything then. Correct. क्योंकि whenever you will go for 3-4 years of experience, there will be more set of questions, not very specific to only coding. There will be questions with design, performance, optimization, these kind of questions. And that only जब भी because I also designed this DataX bootcamp. Basically, it took me time. It took me a very long time to design it, and then to record the videos, to take live classes. So many things happened, and because there are two things. One thing is basically आप चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, आपने ये सारा जो भी टॉपिक्स है लिस्ट कर लिया, सपोज स्पार्क का मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर ली, बट व्हाट एक्चुअली इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें की प्रिपरेशन नहीं किया तो वहां पे इट विल बी वेरी इट इज अ डिजास्टर फॉर यू. वो आपको पता है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सिनेरियो से रिलेटेड, आपको वो एप्लीकेशन नहीं पता, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरव्यू बेस्ड लर्निंग, इंटरव्यू बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर किसी और को लाइक, एंड हार्दिक इज वन ऑफ आवर डेटा एक्स कम्युनिटी पर्सन, ही हैज गॉट द ऑफर, मतलब ही इज वर्किंग, इट हैज बीन आई थिंक सो अ मंथ नाउ, he has been working, and there are many people, but Hardik was one of them, very kind to come up on the podcast and to share his experience, and it is really like thank you so much man for this. And let's go to basically that point that I was talking. Structure सबसे ज्यादा जरूरी है, structure. and जैसे हार्दिक ने मेंशन किया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा. You will be learning now, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, बट when once you go to the interviews after 10 days you will be forgetting all the things when, क्योंकि वहां पे वही चीजें पूछी जाएंगी, तो वो नहीं है तो फिर फायदा क्या है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे करना. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, व्हेन यू वर इन द प्रिपरेशन जर्नी, आप प्रिपेयर कर रहे थे चीजें, ठीक है, आप टेक्नोलॉजीज, काफी चीजें, हम लोग टेक्नोलॉजीज और इन सब स्पेसिफिक बात बाद में कर लेंगे लास्ट में. वी आर मोर फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट, जब प्रिपरेशन जर्नी थी. तो व्हाट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या सबसे ज्यादा आपको हेल्प किया बेसिकली? Okay. So valuable part, if I say, like it's like when I started basically connecting the things, like basically earlier I used to know Python आता था, SQL, Databricks concepts and everything, but after I going with the structured concepts and structure bootcamp everything I followed, वो सब चीज एक साथ मिलके कैसे पाइपलाइन रन करते हैं, like how we used to create the pipeline. That was the major point, like when I started doing things. And तब हो रहा था like
अलग अलग चीज सबको आती है, पाइथन भी आता है, सीक्वल भी आता है, बट वो हम्म, साथ में मिलके लाइक हाउ वी क्रिएट द पाइपलाइन, दैट वाज द लाइक एक्चुअल थिंग। मोस्ट वैल्यूएबल थिंग लाइक आई गॉट टू नो फ्रॉम दिस बूट कैंप एंड एवरीथिंग. सो इट वाज द मेजर थिंग बिकॉज इवन इन द इंटरव्यूज इट्स लाइक सब ऐसे ही पूछते हैं लाइक इफ यू डिजाइन अ पाइपलाइन लाइक डेटा पाइपलाइन फॉर करेक्ट। दिस एक्स यूज केस और एनीथिंग. सो इनिशियली स्टार्टिंग में मेरा वही था लाइक कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, चला गया था लाइक दे आस्क्ड मी लाइक हाँ ये इसका यूज केस बताओ. And I was like clueless like क्या करना है, because I used to know the tools and technology, but अब कौन सी सर्विस कहाँ पे प्लेस करनी है I was not knowing. Then after like preparing and everything, the things got changed. कि नहीं, it was easier in that terms then. So that was the हम्म। scenario, like the most valuable part I would say, like when I really followed everything, like सब साथ में कैसे मिलके कैसे वर्क करता है, that was the major turning point in that. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो Yeah. चीजें कैसे आएंगी अपन, वी आर लर्निंग दिस ऑल्सो, एक्स वाई एवरीथिंग वी आर लर्निंग, बट हाउ टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स टू मेक द, क्यों वो, और वो ऐसे ही नहीं आएगा कि हाँ यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स बनाओगे, प्रॉपर Projects. प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट जिसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं. इफ वी आर डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन, व्हाट इज अ यूज केस ऑफ दिस, इफ वी आर डिजाइनिंग, इफ वी आर राइटिंग दिस सेट ऑफ कोड और वी आर ऑटोमेटिक समथिंग, what exactly the outcome will come and what all concepts we have to use to achieve that particular thing, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. that will come with the project, that structure is very important. so real interview चीजें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, then only you will be able to crack, मेक प्रोजेक्ट्स. डोंट मेक द प्रोजेक्ट्स कि हाँ वही वो यूट्यूब के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए. मेक अ एंड टू एंड पाइपलाइन. वंस यू लर्न द थिंग्स देन यू विल मेक द पाइपलाइंस. दिस इज फॉर एवरीवन whoever is seeing this video and want to really get into data engineering. it is not a very big task, but yes dedication चाहिए. डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप कर लोगे, अदरवाइज रैंडमली इंटरनेट पर तो देर आर सो मेनी टूल्स आउट देयर. someone is saying learn airflow, someone is saying learn dbt, someone is saying learn aws पढ़ लो, snowflake पढ़ लो, सब पढ़ लो. बट एक्चुअल, अगर आपको एक्चुअल डेटा इंजीनियरिंग की चीजें प्रिपेयर करनी है, फंडामेंटल्स पे फोकस करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक इट ऑफ. ठीक है, दैट इज द थिंग. करेक्ट. और एक चीज तो वो रहता है basically- लाइक लिंक्डइन पे भी मुझे सब पिंग करते थे लाइक हाँ. भाई ये क्या करूँ क्या पढ़ूँ एंड एवरीथिंग. सो लाइक वो मैंने देखा है लाइक पीपल आर लाइक रेंडमली सब टूल्स पे फोकस Correct. कर रहे हैं, Tool पे not on focus the कर रहे हैं. basic technology side. तो correct. वो बहुत लाइक गैप आ रहा है उसमें. लाइक दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल द पीपल इन लिंक्डइन आल्सो लाइक प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करो लाइक व्हाट यू आर डूइंग. डोंट जस्ट रैंडमली गो टू द टूल्स एंड एवरीथिंग लाइक हाँ ये भी सब पढ़ना है जैसे आपने हाँ. कहा एज यू टोल्ड. तो वो रहता है, वो सब सब लाइक सब फॉलो करने जा रहे हैं. Correct, एवरीथिंग लाइक correct. ये दे यूज्ड टू बी हैव लाइक इंटरव्यू पे लाइक रेज्यूमे में सब कुछ चाहिए वैसा रहता है. हाँ, सब कुछ सारे But टूल्स it- ऐड कर but like देंगे. ऐसा लाइक आई हैव सीन पीपल विद 2 years or 1 year of experience having so many tools in their resume and मतलब देख के ऐसा लगता नहीं ये कोई 15-20 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे का रेज्यूमे है बेसिकली. तो वैसे नहीं करना है अपन को. एज अ engineer, if you want to become a good engineer, I'm not talking about only data engineer or only backend engineer, front end engineer. I am talking about a good data engineer or a good engineer if you want to become good developer. तो फोकस किस पे करना है, पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स पे उसको क्लियर ऑफ करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर जाके आगे टूल्स तो एक हेल्पिंग हैंड है बेसिकली. सो दैट विल हेल्प, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो वन थिंग, जब आप इंटरव्यूज दे रहे थे, ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यूज एंड ऑल, रेगुलर इंटरव्यूज दे रहे हो, कई जगह रिजेक्शंस भी आ रहे होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया होगा व्हेन यू माइट हैव थॉट कि बेसिकली यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड. तो वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर यू? So basically, time तो like लग गया था like around the 3-4 months like totally, because I was also like weekends पे भी I was preparing like after like working days and everything. Weekends पे भी मैं Saturday Sunday fully I was preparing and everything. So like time वैसा था like starting में वैसे जैसा I told you that interviewer was asking like design this pipeline or everything, and I was clueless at that point of time. But after like giving the interviews and everything, वो एक pattern बन जाता है. You get to know like हाँ interviewers को क्या चाहिए सब companies में. Correct. So that after going that, I used to be like, like they are telling like prepare this data pipeline or SQL optimization techniques बताओ या Spark optimization techniques बताओ and everything. So at that point in time, like वो कुछ पता नहीं पड़ रहा था. Already like, you have that thing like वो prepare किया होता है तो automatically like you were able to answer that. So at that Correct. point of time, I was like, okay, I'm like not 100% prepared, but I'm like interview ready जो बोलते हैं ना like काफी कुछ like 50-60% आपको you already know and now you can start the interview, because I've seen people like 100% सब कर ले फिर they are कर ले. preparing for the हाँ, interviews and then everything. when हाँ, every lights so will be वो green, then हाँ only I'll come out of my home.
वो वाली बात है। करेक्ट। हाँ, सो वो नहीं था, लाइक मैंने 50-60 पर लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया ना, देन आई स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यूज एंड रिजेक्शंस पहले भी आने वाला ही है, बिकॉज द थिंग्स अब मार्केट में जो रहता है इट वुड बी टोटली डिफरेंट, एंड देन लाइक पैटर्न एक बार फॉलो हो जाती है। सो दिस वाज द मेजर लाइक डेटा पाइपलाइन बोले वो, लाइक यू लाइक हाउ टू क्रिएट दैट, या एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर, लाइक बहुत कुछ क्वेश्चंस रहते हैं सर, डेटा ब्रिक्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो दैट करेक्ट। पॉइंट इट वाज इजियर फॉर मी कि नहीं वो हो जाता था आंसर उनको। At that हम्म। point, like it was easier for me कि नहीं, interview ready तो है, not 100%, but I'm able to answer them what they want basically. So करेक्ट। that was like major turning point. Like हाँ, like अभी like there would be कि some हाँ मैं तैयार like हूँ, अब मैं कर achievement. लूंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस हो आ जाता है correct. जब। Yes. और बेसिकली हाँ, एक पॉइंट और, बेसिकली यू आर हैविंग अ AWS कंपनी पार्टनर्ड ऑफर, ठीक है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी correct. कैसे आई थी बेसिकली कि हाँ हाउ योर, लोग तो ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रहे, लोग कह रहे हैं कि मेरे को इंटरव्यू कॉल से नहीं आ रहे हैं। आपका कैसा प्रोसेस, वो अपना प्रोसेस, जॉब ढूंढने की जर्नी हल्का सा ब्रीफ में अगर बता सको तो दैट विल बी वेरी ग्रेट Correct. एंड हेल्पफुल फॉर द पीपल, हाउ So एग्जैक्टली दीज थिंग्स basically, हैपेंड। yeah. Yeah, so I had a very good opportunities from one of the companies, that is AWS partner company. But about this company, I was like basically I was LinkedIn pe, I was used to be like very active at that point. I used to post everything and basically things and everything. So I got this opportunity from there. Like I saw that opportunity and referral through apply kiya tha basically in this company. And basically the interviews and everything went through that, because the referral ke through it becomes easier. Like if you reach out to मच the इजियर। person or LinkedIn, and it would be much easier at that point of time. So वो सब follow किया था. Interview process, if I say, like it was very simple over here. Like basically interview process wise, like there were like firstly it was a hacker rank round and everything. Like ओके। जिसमें Python, SQL or PySpark के questions, like basic MCQs based questions, or like hands-on practice, like basically questions रहते हैं, SQL queries and everything. Then it was the L1 round, basically about your like basically the projects that I have made or uske related सब था. Even with ओके। the data breaks and the PySpark and everything, it was like basic to intermediate level questions, everything. ओके। And then L2 round was there, because that was basically the scenario based question, like ओके। much deeper into data breaks and everything, because it's like basically the company that I recently joined is like a Databricks partner, and basically again the funded companies and everything. So basically that is the thing, like वो Databricks पे ज़्यादा focus कर रहे थे. And that करेक्ट। point of time, like Databricks में I already had like experience, I built few projects and everything. So it was easier for me to basically answer that and clear the interview. So basically that was the thing, but because of that, like referral की वजह से it got much faster फास्ट टर्न process and अप हो गया। everything. हाँ. So it was करेक्ट। there, and then the things come, like I had AWS partner company offer as well, and the Databricks partner company as well. So ग्रेट। that was the thing. Yeah. सही है यार। मतलब देर वॉज अ पॉइंट व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग एंड नाउ यू आर हैविंग, लाइक Correct. यू ज्वाइंड ऑल्सो बट यू आर हैविंग अ ऑफर Yes. of two different companies that is a good companies, only AWS partner, Databricks partner, now you have to choose between them. Very good, very good Between thing. them. Yeah. So I also had like basically Big Four company offer. Like it was in the oh last stage, but I joined that time in this company, so I didn't go with that offer then. But great. इसमें था, so I joined here then. I think so on a learning point of view also, this will be much better where you are working because it is a Databricks partner. So you'll be working more Correct. because right now Databricks is a very trending technology. It has been in past Exactly. 2 to 3 years, it has grown a lot. Lot of companies are now adapting. ठीक है, big MNCs in India also, so many big companies are adapting it. So yes, it is a very good technology to learn. So and also because I'm not talking about only Databricks, I'm talking firstly learn about the core Spark, SQL, Python, then only come to Databricks, because Databricks is all about Correct. what you are writing your Spark queries, you are writing your SQL queries, Spark code you are building, Queries. you are designing your pipeline in that. तो वैसे करके ही चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली उससे हेल्पफुल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही करके चीजें करनी है, हो जाएगा। रैंडमली नहीं जाके कुछ भी पढ़ने लिखने लग जाना है, लाइक पढ़ने लगना। रैंडम टूल्स नहीं करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, चीज है। correct. मैं खुद लाइक एज यू वर टेलिंग ना, लाइक पीपल आर रीचिंग आउट टू यू एंड आस्किंग कि कौन सा टूल करिए वो, तो सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंस टू मी ऑल्सो। पीपल आर रीचिंग आउट एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली। मैंने तो सच बताऊं, लाइक आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज ऑन दिस दैट
we should not learn, we should not focus on only tools things are important, but firstly basics learn करो. tool learn करना तो बहुत easy हो जाता है बाद में. if you are Easy हो aware जाएगा. about GCP, Google Cloud, you can learn Databricks, you can learn about AWS, you can learn about Azure very easily because concepts are very similar. ठीक है. वैसे Databricks is a SaaS platform, वो that is a different story, तो वो अलग चीज है. ठीक है. Don't make, I'll So not मेरा mix वैसा the ही था, things. like initially I had GCP experience only. TCS में I worked for 4.5 into GCP majorly. Then basically I came into Databricks and everything. So major वही था GCP. एक cloud ही, like basically people are following like sub cloud कर लो and then basically they used to go ahead. But I was और like एक क्वेश्चन इसमें GCP है, पूछूंगा, like, हाँ. सॉरी टू कट यू डाउन, कि आप जीसीपी जब इंटरव्यूज दे रहे थे तो बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, दैट इज आपको अपॉर्चुनिटीज कम दिखी क्या? जीसीपी में जॉब ही नहीं है ऐसा? नहीं वैसा तो नहीं था कि जीसीबी में कम थी, लाइक लिंक्डइन पर दिख जाता है लाइक क्या कितने अपॉर्चुनिटीज वाइज है सब. बट हाँ वैसा रहता है कि सर्विसेज मेजरली कितने रहते हैं, हाउ मेनी सर्विसेज यू नो. जीसीबी में जैसे बहुत सर्विसेज है, लाइक पबसब है, बहुत बिग क्वेरीज है, मेजर सर्विसेज है, वो कितने सर्विसेज आते हैं वो सब पे वो फोकस करते हैं इंटरव्यूअर्स. लाइक दे बेसिकली फोकस ऑन दैट पार्ट, लाइक हाउ मेनी सर्विसेज यू नो. क्लाउड पे भी हाउ यू नो बेसिकली पूरा एंड टू एंड पाइपलाइन बना सकते हो या नहीं. दैट्स द मेजर थिंग्स दैट दे बेसिकली फॉलो ऑन दैट पार्ट. बट यू एग्री ऑन दिस पॉइंट ना, basically. लाइक बेसिकली कि इफ यू अ पर्सन नोज जीसीपी तो वो किसी क्लाउड को सीख सकता है एंड दे कैन अपीयर फॉर मल्टीपल Exactly. इंटरव्यूज. ऐसा नहीं है कि बेसिकली ओनली Correct. इतने ही लिमिटेड है अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गो थ्रू ऑल द थिंग्स. To ये all the कंफ्यूजन, things. हाँ ये Correct. कंफ्यूजन Because बहुत मैंने होता भी है. किया लाइक जीसीपी में ही था and I eventually came into Databricks. So it's like Correct. different thing if we see it like Totally that. different. So पूरा Databricks is totally different. It is a lake house Correct. that we are working right now, and previously we were working on a data warehouse and different kind of Data warehouse. services were the. Correct. तो definitely it is different. हाँ. But चीजें इतनी, जो लोग को ये confusion था basically कि ये cloud पढ़ूंगा तो कहीं मैं miss out तो नहीं हो जाऊंगा basically कि नहीं, वैसे- GCP पढ़ रहा हूँ तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा basically कि AWS में ज्यादा opportunities चल रही है, market Azure में ज्यादा बढ़ जाएगा. No, similar kind of opportunities are there. You can learn any one हाँ. cloud. You can jump on any cloud. ठीक है. Very very important. ऐसे काफी कंपनीज भी ऐसी रहती है, लाइक इवन दो जीसीपी में एक्सपीरियंस हो, दे आर टेकिंग इनटू Azure या AWS में. हाँ. Because concept wise like they see like employees are able to like basically switch into different clouds or not. Because Correct. वैसा वो इंटरव्यू में पता लग जाता है उनको, लाइक इंटरव्यू लाइक बेसिकली जो भी कैंडिडेट है इज लाइक एलिजिबल फॉर बेसिकली द न्यू क्लाउड और ओपन फॉर दैट और नॉट. बिकॉज काफी रहते लाइक दे आर लाइक नॉट ओपन टू क्लाउड्स एंड एवरीथिंग, तो वो एक स्टिक करके एक में रहते हाँ, हैं. ऑन प्रेमाइज टूल्स पे ही काम कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग. काम करते हैं. क्लाउड का एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, तब प्रॉब्लम नहीं होती है, रहता है. बिकॉज थिंग्स आर वेरी तब डिफरेंट ऑन क्लाउड, ऑन प्रेमाइज इट इज डिफरेंट. डिफरेंट. तो करेक्ट. वो चीजें होती हैं. एंड एट लास्ट आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, दैट इज ऑन, बिफोर लास्ट क्वेश्चन, वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी प्रीकैप ऑफ दिस वीडियो. दैट इज बेसिकली हाउ मच हाइक डिड यू गेट? मतलब सैलरी, बहुत सारे लोग तो इसी पॉइंट के लिए यहाँ तक बैठे होंगे, कितना पैसा कितना मिला भैया? हाउ मच हाइक डिड यू गेट फ्रॉम TCS coming to this particular company as a senior data engineer? Basically, that's like very, like I would say like a good hike. Basically, I got like 200 plus, like 20% of this, like 220% of something. But it was like a good opportunities coming through like different background, like not different, but it to a like proper data engineering field. So it's like 200 plus of hike that I got basically in this company. But because it's like basically the market job and everything. So how many % you get in? Because TCS में initially like you join at lower and then basically वो hike system रहता है. Slowly, And now gradually, it's like you are, हाँ. And now you अब are एकदम came into the steep market jump. with हाँ. So वो जो market में भी चल रहा है like in that point of view that I came into. So it's like a Great. good basically hike I would get. I got, but yeah, it's very difficult to be at place like preparation बहुत like you need a Difficult proper था. preparations Yes. and everything. हाँ, वो Because तो you करना know the, like, पड़ेगा my full किसी को भी. journey. करेक्ट करेक्ट है, You दैट know ओनली my full है. journey. यस यस यस, हाँ. इट टुक टाइम. ऐसा नहीं है कि हाँ भैया इतने पैसे से इतने पैसे पहुंच गया, 200% का हाइक मिल गया. देयर इज अ वेरी मिल गया. वेरी मच हार्ड वर्क पुट इनटू दैट, एंड एक बैक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी खासी लंबी बैक स्टोरी है दैट हैज हैपेंड. इफ यू गाइज आर विलिंग टू डू दैट, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ हाइक्स, दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ऐसे करके पैसे तभी कमा सकते हो. अदरवाइज पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द थिंग्स, पीपल हु आर नॉट लर्निंग द ट्रेंडिंग थिंग्स, पीपल हु आर नॉट फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल्स, दे विल बी नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है. Important. एंड सपोज आपके सेम सिमिलर एक्सपीरियंस पे आपसे जूनियर या आपसे सीनियर एनी पर्सन हु वांट्स टू like get into a field of data engineering, or he is stuck into some support job, want to get into data engineering, want to switch from one company to other company, what is the advice that you will get right now so that that जो चीजें आपने फेस आउट की हुई, आप भी जब प्रिपरेशन करोगे बहुत चीजें आपको लगी होंगी ये चीज नहीं करनी चाहिए थी यार, सो व्हाट सजेशंस यू विल गिव देम? Okay. So honestly, I would be answering this question very honestly. The cheese kaisa hai, like even if you like any person is who are like employed, like doing a job, or basically it's regardless of any technology. Like kuch bhi role pe ho, and like if you want to come to data engineer or basically data analyst, like or koi bhi tech pe jana, the first thing is like if you are thinking like there is some one factor is missing in that, like job kar rahe ho usme, like if you're not getting proper growth or anything, then bro you are not alone in this. Like I have been in that zone, like वो growth नहीं मिल रहा है and everything, and many of them would have been that position, like growth नहीं मिल रहा है, क्या करे आगे. So I would say like take a step back, relax रहो. Like basically first step is basically if you want to switch to basically for data engineer role पे आपको जाना है, first look for the market में like वो technology या tools पे who is excelling already, like who is doing good in that technology. जैसे data engineering में है तो कौन है, तो वो focus that like person जो भी रहते हैं, जैसे आप रहते हो data engineering में everything, so they can follow basically the person that is already doing. उनको उनसे like structured path basically you can follow them. How many things and every tools and technologies आप देख सकते हो, structure roadmap basically you can ask them. LinkedIn पे connect करो, कैसे basically ask them क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. एंड पैरेलली उसके साथ साथ लाइक डू द लाइक बेसिकली हैंड्स ऑन, वो लाइक सीक्वल हो, पाइथन हो, स्टार्ट डूइंग दैट. बिकॉज पैरेलली इफ यू आर लर्निंग यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट समवेयर, तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दैट. एंड वो दो चीज के बाद यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज इन इंटरव्यू इट्स मोर अबाउट लाइक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. So if you follow that, उससे clarity build होगी, you will be able to get some clarity like overall end to end वो आप कैसे build कर सकते हो. And clarity के साथ you will be like more confident, people would be more confident. So हो जाता है, इतना कुछ difficult नहीं है. मैंने भी किया है, so आपका भी हो जाएगा. It's not too difficult. So just focus is there and you need that dedication in that. Structure path follow करो, hands on करो, interview based questions करो, then it will be much more easier practically to do that. बिकॉज काफी लोग बहुत कुछ फॉलो करने जाते हैं इसमें, लाइक वो भसड़ हो जाते हैं फिर. हाँ, देन दे आर मिडिल इन द मिडिल एंड करेक्ट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज करेक्ट. जो चीज़ें अभी ज़रूरत है वो पढ़ो एंड ट्राई टू, एज ही मेंशन्ड, अ रोड मैप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. रोड मैप नहीं है ना तो यू विल बी लर्निंग रैंडम थिंग्स. अगर आप यूट्यूब खोल लो तो यूट्यूब में इतने सारे सजेशंस आएंगे एंड यू विल बी नॉट एबल टू फिगर आउट बेसिकली कि दिस इज इंपॉर्टेंट और दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वो फिगर आउट करने के लिए आपको एक गाइडेंस या एक स्ट्रक्चर या एक रोड मैप वॉट एवर इट इज, कनेक्ट विद द पीपल, आस्क क्वेश्चंस, वो क्लियर आउट करो, उसके बाद आगे बढ़ते रहो. दैट इज हाउ इट हैपेंस एंड प्रैक्टिस इज द कोर. प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो तो you will be not able to कैसे उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड में कैसे इंटरव्यूज में क्या बोलोगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यूज में अगर चीजें बतानी है इंटरव्यूज में, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम प्रोडक्शन बैकग्राउंड, प्रोडक्शन सपोर्ट बैकग्राउंड. इफ यू वांट टू गो इनटू डेटा इंजीनियरिंग विद 3 years 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, शोकेसिंग दैट एक्सपीरियंस, दिस हैपेंस. ठीक है, वेरी वेरी इट इज वेरी कॉमन, दिस हैपेंस. तो कैसे करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, देन यू हैव टू डू थिंग्स. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव, बट येस हार्डवर्क इज वन ऑफ थिंग. देर इज अ बैक स्टोरी बिहाइंड एवरी पर्सन हु स्विचेस, और एक अच्छा पैकेज जो 200-300% का हाइक दिखता है, तो देयर इज अ वेरी गुड बैक स्टोरी बिहाइंड दैट. वो फॉलो अगर वो कर सकते हो तभी ये सारी चीजें हो जाएंगी इन प्लेस और आराम से हो जाएगा फिर. तो आई थिंक सो दिस वाज इट एंड थैंक यू सो मच हार्दिक, रियली थैंक यू फॉर डूइंग दिस वीडियो सो दैट अभी क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे सीन चल रहा है, वो सारी चीजें लोगों को पता चले. एंड ऐसे डर के चीजों को लेके एंड थिंकिंग कंफर्टेबल हो के चीजें, पैसे नहीं बढ़ेंगे ऐसे. यू हैव टू टेक दैट रिस्क, यू हैव टू टेक दैट कॉल, तभी चीजें होंगी. सो दिस वाज अबाउट इट. एंड इफ यू एनी ऑफ यू वांट कि हाँ बेसिकली आई एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, एनी गाइडेंस ऑन द डेटा इंजीनियरिंग पार्ट, वी हैव a dedicated boot camp of data engineering DataX. Link is there, everything is there in the description. आप फायदा उठा सकते हो उससे. Thank you so much, man. Correct. Glad to be here, Anurag. Thank you so much. Thank you so much, Hardik. It was great talking to you. Great. Same here.